ठीक है, so Okay. on behalf of your confident, I welcome all who have joined us and those who will join us soon. My name is Dr. Pooja Kapoor. I'm a counseling psychologist and a hypnotherapist at Your Confident. We are headquartered in Cuttack, Odisha. We aim to offer mental health counseling, promote awareness about mental well-being, and deliver comprehensive training programs. We have been providing online counseling services across the country and abroad and spreading awareness about mental health through our social media platforms. Today's session is an attempt to educate masses about the role of homeopathy and music therapy in managing emotional health issues. To share her knowledge with us, we have a very versatile and multi-talented doctor, Dr. Abhiruchi Tuli. Dr. Abhiruchi is a senior homeopathic physician with a BHMS from Delhi University. She also holds an MS in Counseling and Psychotherapy from Institute of Behavioral and Management Sciences, Chittoor, and is a certified music therapist from Yenipoya Medical College, Mangalore. Dr. Abhiruchi runs successful private practice clinics at Greater Kailash and east of Kailash, Delhi, where she has treated thousands of patients from both India and abroad. In recognition of her significant contributions during the COVID-19 pandemic, Dr. Abhiruchi was honored with the Corona Warrior Award in 2020. She provided thousands of free consultations for COVID patients across India and wrote and sang songs to raise awareness about COVID-19, which were broadcast on FM radio. She is also a singer and has done concerts both online and offline and on radio. She uses music not just for entertainment but also to treat various diseases. Dr. Abhiruchi's dedication and excellence in healthcare have earned her several prestigious awards, including the Chikitsa Seva Ratna Award in 2021 and 2024, and recognition from Seva Bharati for her invaluable contributions. As a music therapist, she offers therapeutic support to patients with diverse conditions, including Alzheimer's disease and psychiatric disorders such as depression, OCD, and schizophrenia. Additionally, she conducts music therapy workshops designed for various groups, including senior citizens. We formally welcome you, ma'am. A very warm welcome from all of us. Thank you so much, Dr. Pooja Kapoor, for having me here on your esteemed platform, Your Confident. It's an honor for me. हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके और आई थिंक जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो टू स्टार्ट विद डॉक्टर I साहब welcome you all. I also welcome all the participants. I have many patients over here, so very warm welcome to you all. डॉक्टर साहब आप हमें सबसे पहले ये समझाएं कि होम्योपैथी से स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं Dr. Pooja, today the society is changing really fast, no? And we have to change. You have to face challenging situations every minute and deal with them every minute. तो बच्चों से लेकर बूढ़ों को तक सभी को कोई ना कोई प्रेशर है आजकल की दुनिया में. बच्चों को एग्जाम्स का एंजाइटी रहती है, एंट्रेंस क्लियर होगा कि नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं. फिर जॉब में टारगेट्स को मीट करने का प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं इतने, उसके अलावा रिलेशनशिप्स में कितना प्रेशर हो गया है. सो एवरीवन इज फेसिंग सम ऑफ द अदर प्रेशर, जिसकी वजह से स्ट्रेस इज कॉज्ड. आपने फिजिक्स में शायद एक फॉर्मूला कभी कभी पढ़ा होगा बचपन में. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, which was applied on metals. Resilience means the strength of the wire. तो अगर हम इसी फॉर्मूला को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर बीइंग द न्यूमरेटर वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन रेजिलियंस इज इन द डिनोमिनेटर. अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिलियंस. सो होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है? होम्योपैथिक मेडिसिन इसी रेजिलियंस यानी इनर स्ट्रेंथ, हमारी जो इनर पावर है,
उसी को इंक्रीज करती है, और वी आर एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। या हमें स्ट्रेस होता ही नहीं है, या होता है तो वी आर एबल टू डील विद इट, एंड बहुत कम स्ट्रेस से हम आराम से उसे कोप अप कर जाते हैं। अब ये तो हो गई स्ट्रेस अगर होता ही नहीं है। अगर स्ट्रेस हो जाता है तो उसके वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, फिजिकल मेंटल बोथ। जैसे कि किसी को नींद नहीं आना, इंसोम्निया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, किसी को माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी, वेरियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं ना। सो उसमें क्या, जो सिम्टम्स को भी ट्रीट करने में ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव. So it works very nicely on those symptoms. This is what. अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी से रेजिलियंस इंप्रूव होता है। रेजिलियंस एक कॉमन फैक्टर हो गया, बट जैसे कि आपने बताया और वी ऑल नो, बच्चों को भी स्ट्रेस है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, देन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का जो बॉडी पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो भी सबके अलग अलग तरीके के होते हैं। देन हाउ डू यू सिलेक्ट मेडिसिन? मतलब सेम दवाई सबके लिए इज अ गुड ऑप्शन? It's not like that. Actually, homeopathy is a tailor-made medicine. That means कि सबकी मेडिसिन अलग है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो जो कि हम उसे पूछते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, और उसके बाद हम उसी की मेडिसिन अलग से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग स्ट्रेस के लिए आते हैं तो सभी को अलग अलग मेडिसिन दी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन भाई स्ट्रेस का कारण क्या है, वो पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, और इसके अलावा उसकी पर्सनालिटी, उसका लाइफस्टाइल जैसे बहुत सारे फैक्टर्स भी हम उससे पूछ करके द होम्योपैथिक डॉक्टर विल डिसाइड द मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि सबको वही दिया जाएगा। जैसे अगर हम कारण को ले, स्ट्रेस के कई कारण है। अगर किसी की जॉब चली जाती है तो उससे जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी मेडिसिन अलग है, जैसे नक्सफॉर्मिका। अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उसकी मेडिसिन अलग है, जैसे कि इग्निशिया। इसी तरह से अगर कुछ ब्रेकअप हो गया है रिलेशनशिप में, उसकी मेडिसिन अलग है। और स्टेज परफॉर्मेंस, एग्जाम से पहले परफॉर्मेंस एंजाइटी वगैरह के लिए भी अलग ही मेडिसिन है, जैसे कि जेरसीमियम। इवन मैंने भी जब बहुत लंबे गैप के बाद स्टेज पर वापस गाना शुरू किया अभी रिसेंटली, तो मैं उसे हमेशा अपने पर्स में रखती थी, और स्टेज पर जाने से पहले जरूर 4 गोली मुंह में डाल के जाती थी। और उसको देखा देखी बहुत सारे सिंगर्स भी मुझसे मांगने लगे, एंड दे ऑल्सो बेनिफिटेड विद इट। बट यहाँ मैं मेडिसिन के नाम बता रही हूँ, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी शुड नॉट, द पेशेंट शुड नेवर सेल्फ मेडिकेट देमसेल्व्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको वो दवाई का असर जरूरी नहीं है कि हो जाए। तो आप बेटर है कि यू गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर in your locality, or you can even consult online. Nowadays every doctor is mostly available online. मैं भी online consultation करती हूँ all over India, all over the all countries, or even I send the medicine directly through courier all over India and abroad. तो ये करना चाहिए, ना कि आप self medicate कर लें। ठीक है? दैट मीन्स आइडियली स्पीकिंग, अगर किसी को भी कुछ भी स्ट्रेस या ऐसे इश्यूज हैं, दे शुड कंसल्ट अ Yes. डॉक्टर एंड देन दे शुड। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब फोन कर लें उसको, उनसे ऑनलाइन वीडियो कॉल बुक कर लें। we can also share your contact number. Yeah, Samarpita sure, doctor sure. number Sure, please sure. share with all participants. I'm always आपने available. once when we were interacting, आपने बताया था कि even board exams के time some of the students they Yes, approached yes. you Many for the students come to me and बोर्ड एग्जाम से पहले भी वो जरूर लेकर के जाते हैं, एंड बहुत रिलैक्स्ड वे में। नहीं तो कई बार उसकी छोटी सी वजह, एंजाइटी की वजह से सारा एग्जाम खराब हो जाता है ना। सो इट्स रियली यूजफुल टू टेक। अच्छा डॉक्टर साहब, एडवांटेजेस क्या हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के? There are many advantages. Firstly, as everyone knows, there are no side effects. इतनी सेफ है कि you can even take it in pregnancy and during breastfeeding a child. फिर ये हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है। देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। आप इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर दी तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर ये रूट कॉज को तो रिमूव करती है हर प्रॉब्लम के, और बहुत लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। ऐसा नहीं कि बस जितनी देर खाया उतने घंटे के लिए रिलीफ है। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलीफ मेडिसिन। और सबसे मजेदार बात, इजी टू ईट, मीठी होती है। जी बच्चे मांग मांग के खाते हैं। नहीं, और आपने ये जो रूट कॉज कहा, ये तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि
होम्योपैथिक जड़ से ठीक करेगी तकलीफ को, आपको जो भी तकलीफ। एग्जैक्टली वही करती है। अच्छा, ये तो स्ट्रेस हो गया, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज एंड फाइनेंशियल इश्यूज, बच्चों को एग्जाम्स की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम। सो और क्या क्या, जैसे स्ट्रेस के बारे में तो हमने बात की, और कौन से मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं जिनके लिए होम्योपैथी इफेक्टिव है? ऑलमोस्ट ऑल मेंटल इश्यूज आई वुड से, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन, फोबियाज, मेनी फियर्स आर देयर, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, इवन ऑटिज्म में इट इज वेरी इफेक्टिव। ओसीडी से मुझे एक केस याद आ रहा है कि अराउंड 15-20 years बैक आई हैड अ फीमेल पेशेंट एंड शी वाज अ वेरी सीवियर केस ऑफ ओसीडी, and she could not stop washing her hands and cleaning herself, and the problem was that she was pregnant and didn't want to have allopathic medicines. So that's why she came to me, and we kept her on homeopathic medicine throughout her pregnancy, and which had very good effects, and finally she had a safe delivery. I think वो शायद audience में भी उन्होंने join किया है आज, एंड आज भी वो मेरे पास आती हैं फॉर वट एवर इशूज, एंग्जाइटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड इशूज, एंड विद वेरी गुड इफेक्ट्स, एंड शी ऑल्सो एजुकेट्स अदर पीपल अबाउट दैट। एंड आई थिंक दिस इज वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रेगनेंसी में, क्योंकि कई बार लोगों को काफी इश्यूज हो जाते हैं, इवन साइड इफेक्ट्स। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी कॉमन नाउ डेज ना, तो उसमें भी वी हैव वेरी गुड मेडिसिन, क्योंकि उस टाइम पे द लेडी इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो कोई और मेडिसिन वो ले भी नहीं पाते हैं, तो दिस इज अ सेफ ऑप्शन। जी, वेरी नाइस टू नो दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक डॉक्टर तो हैं ही, साथ में आप एक सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं, तो हमें थोड़ा सा म्यूजिक थेरेपी के बारे में भी बताएंगे? मतलब व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी? इज इट जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक? No, certainly not. It is much more than that. Music therapy is a scientific system of medicine which is used to improve and maintain the physical and emotional health of a person. And music therapists are trained professionals. उनको ट्रेन किया जाता है, कोर्सेज, डिग्रीज, डिप्लोमाज हैं आज इंडिया में, एंड उससे वो प्रोफेशनली ट्रेन होके देन दे आर डूइंग दिस म्यूजिक थेरेपी। इवन रिसर्च में ये देखा गया है कि जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी थे इंडिया में, सुश्रुता, he used to use music therapy around more than 2000 years back to bring the patients out of coma. It's that old. तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है म्यूजिक थेरेपी में, नॉट जस्ट सुनना, जैसे कि आपने कहा, उसमें सिर्फ कोई भी गाना नहीं सुन सकते आप, एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक आपको आप सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स डिजीज, उसकी क्या बीमारी है, उसका मूड कैसा है, उसकी म्यूजिकल चॉइस कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स लेके एक टेलर मेड म्यूजिक अगेन उसको दिया जाता है। और जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई पेशेंट को अगर डिप्रेशन है, तो हम उसे एक बहुत सैड और स्लो टाइप ऑफ म्यूजिक रिकमेंड करते हैं, सुनवाते हैं, ताकि वो उससे रिलेट कर पाए और धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आता है, ना कि कोई पेपी टाइप ऑफ म्यूजिक की भाई वो खुश हो जाएगा, वो उससे एग्रेवेट ही हो जाती है उसकी कंडीशन, ऐसा होता है। सो और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि बहुत सारे राग हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है सर्टन डिजीजेज में, उनको प्रूव किया गया, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के राग्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इसके अलावा, सुनने के अलावा, म्यूजिक के साथ हम बहुत कुछ और करते हैं म्यूजिक थेरेपी में, जैसे कि लिरिक राइटिंग एंड सॉन्ग इम्प्रोवाइजेशन। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एल्जाइमर पेशेंट में हम इसे बहुत यूज करते हैं, कोई एक फेमिलियर ट्यून लेके हम अपने वर्ड्स को, कोई वर्ड्स लिख देते हैं उसके लिए और उसको सेट कर देते हैं उस ट्यून पे। अब इसको एल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस बहुत हो जाता है पेशेंट्स को ना, समटाइम्स दे इवन फॉरगेट देयर नेम्स, देयर एड्रेस, कौन सी सिटी में रहते हैं ये तक भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कोई गाना लिया और उसको उस पे सेट किया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर मैं अपने लिए करती हूँ, ऐसे करेंगे, मेरा नाम अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, मेरा नाम अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ,
अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, इस तरह से। तो हम उसको क्या करते हैं कि रोज वो प्रैक्टिस करवाते हैं, एंड बिकॉज ही रिमेम्बर्स द ट्यून, धीरे धीरे वो वर्ड्स भी वो मेमोराइज होने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम ट्यून्स पे सेट करके, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके हस्बैंड का नाम, बच्चों का नाम, ऐसे करके वी हेल्प दिस पेशेंट्स इन लिरिक राइटिंग। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, पेशेंट्स आर मेड टू क्रिएट म्यूजिक विद देयर ओन बॉडी, हैंड्स, फीट एंड बॉडी मूवमेंट्स। जैसे टैपिंग हो जाती है, क्लैप करते हैं, टैप करते हैं टू अ सर्टन रिदम, जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़ती है और आपका माइंड की कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और उनको हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी देते हैं, जैसे छोटे छोटे, उनको जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे शेकर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ शेकर हियर, ये इस तरह के बहुत सारे मार्केट में शेकर्स आते हैं, सो आई कीप देम, एंड वो उनको देते हैं। जामवे देते हैं, आपने ड्रम सर्कल्स के बारे में सुना होगा, आजकल दे आर वेरी पॉपुलर। जामवे लेके उसमें सब लोग बैठ के एक साथ बजाते हैं म्यूजिक, एंड एक जो ऑरा क्रिएट होता है, एक जो एक्सपीरियंस, उससे बहुत इमोशनली उनको हेल्प मिलती है ना। उसके अलावा वी हैव सर्टन टिबेटन सिंगिंग बोल्स विच इज a part of sound healing. मैं आपको दिखाती हूँ, they have different frequencies. This is one of the bowl, this is a Tibetan bowl, अच्छा। ऐसे होता है ये। तो ऐसे बहुत सारे frequencies होती हैं, and this is a also called sound healing. It's a part of music therapy. इसके अलावा we do muscle relaxation with music, guided imagery with music, जिसमें कि एक पर्सन को रिलैक्स किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप अपने माइंड में कुछ इमेजेस बनाइए अलोंग विद म्यूजिक। रादर देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन इन येनेपोया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, जहां से मैंने ये कोर्स किया है। वहां पे दे आर डूइंग गाइडेड इमेजरी ऑन डायलिसिस पेशेंट्स, एंड दिस रिसर्च इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड। और उसमें वो डायलिसिस से पहले उनको गाइडेड इमेजरी देते हैं म्यूजिक के साथ में, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं डायलिसिस पेशेंट्स में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी और भी है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में और मैं नहीं जाना चाहती, नहीं तो बट ये ऑफलाइन ऑनलाइन हम दोनों करते हैं। अच्छा, ओके, ऑनलाइन भी होता है हाँ, क्योंकि हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी, लाइक आई नो यू, सो मुझे भी इतना डिटेल्स नहीं मालूम था म्यूजिक थेरेपी का, लाइक यू शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट साउंड एंड ड्रम्स एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन डिफरेंट तो सिनेरियोज इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में म्यूजिक हाँ, आजकल थेरेपी। बहुत सारे कोर्सेज हैं इंडिया में, बहुत सारे ट्रेन्ड म्यूजिक प्रोफेशनल्स हैं। देयर इज अ इंडियन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन ऑल्सो, एंड बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशनली ट्रेन होके कर रहे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड इवन आई एम ऑल्सो डूइंग ऑनलाइन, तो आसानी से आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। So like for homeopathy as well as for music therapy, you are available online to the clients. That यस, is मीठी गोली great. मीठा गाना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे म्यूजिक थेरेपी स्ट्रेस के लिए तो आपने बहुत सारा एक्सप्लेन किया कि इट हेल्प्स, तो किस तरह से, मतलब क्या मैकेनिज्म क्या है जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी आदमी को स्ट्रेस होता है, तो उसके उसमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है, द स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। इससे क्या होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल आने से, अगर वो बहुत देर तक हमारी बॉडी में रह जाएगा या बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाएगा, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हमें होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाती हैं कॉर्टिसोल की लेवल्स इंक्रीज होने से। तो ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जो म्यूजिक थेरेपी देने के बाद जो कॉर्टिसोल लेवल के जो वो है आपके लेवल्स हैं, वो कम हो जाते हैं, कॉर्टिसोल। तो इसलिए म्यूजिक थेरेपी अपने आप स्ट्रेस को कम कर देता है, स्ट्रेस को होने नहीं देता, और बीमारियों से भी बचा लेता है ये सब स्ट्रेस होने की। फिर उसके अलावा नॉट जस्ट रिड्यूसेस कॉर्टिसोल, म्यूजिक थेरेपी के बाद एक हमारा हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, विच आर कॉल्ड एंडोर्फिन्स।
एंड इवन डोपामीन एंड सेरोटोनिन, इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये सिक्रीट होने लगता है म्यूजिक थेरेपी के बाद। एंड इससे क्या होता है कि हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है और एक बहुत वेलबींग की फीलिंग लग जाती है। इवन आपने शायद जानते होंगे पार्किंसंस वगैरह में डोपामीन की मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं, तो म्यूजिक इज अ नेचुरल डोपामीन रिलीजर, so it could be used in Parkinson's disease very effectively. इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी also lowers our heart rate and also regulates our blood pressure and our respiratory rate, और ये मसल्स को तो रिलैक्स करता ही है, उसके अलावा वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे भी हमें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट तो कर ही देता है, गाने में मस्त हो जाते हैं हम। तो दीज आर ऑल यूजेस, इस तरह से काम करता है म्यूजिक थेरेपी। अच्छा, जितना मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर अभिरुचि, स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो हेल्प कर ही रहा है म्यूजिक थेरेपी हमें, और भी क्योंकि आपने जैसे शेयर किया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इससे इफ आई एम इमोशनली फिट, फिजिकली फिट, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऐसे लोगों को भी ऑप्ट करना चाहिए म्यूजिक थेरेपी? जैसे हम कहते हैं ना, इवन इफ यू आर फिजिकली फिट यू शुड गो फॉर अ वॉक। तो क्योंकि हाँ हाँ, यू नो ये तो बच्चों को कितना स्ट्रेस रहता है, वर्क स्ट्रेस रहता है, इससे पहले वो एलिवेट हो, इवन बिफोर दैट इफ समवन ऑप्ट्स फॉर म्यूजिक थेरेपी, व्हाट डू यू yes, से? of courस we have sessions for various groups, जैसे सीनियर सिटीजन ग्रुप्स में बच्चों के लिए, कॉर्पोरेट्स में भी have sessions, ताकि उनका वो उस लेवल तक पहुंचे ही ना कि उनको स्ट्रेस हो जाए, वो काम रहे। और इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ओटीज में आप म्यूजिक लगाया जाता है, हॉस्पिटल्स में म्यूजिक लगाया जाता है, इवन कॉर्पोरेट्स में भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ पीछे चलना चाहिए और यू शुड रिलैक्स विद म्यूजिक बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और उसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में म्यूजिक थेरेपी भी यूज होता है, जो कि मैं बताना चाहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो नॉर्मल लोगों की बात हो गई, बट बीमारियां हैं जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आई गो टू अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं शिजोफ्रेनिया और इस तरह के डिसऑर्डर्स के, एंड उनका इतना बोर्डम रहता है रूटीन में, दे फील सो सैड, लोनली। तो जब व्हेन आई गो देयर, वो 1-2 घंटा वो इतना एंजॉय करते हैं, दे कम एंड सिंग विद मी, दे डांस, एंड पूरा दिन उनका मूड ठीक हो जाता है। इसी तरह अल्जाइमर्स में, डिमेंशिया में बहुत इफेक्टिव है म्यूजिक थेरेपी। इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, योर मूड। रादर मुझे एक केस भी याद आ रहा है अल्जाइमर्स का। रिसेंटली आई वाज डूइंग अ म्यूजिक सेशन विद माय अल्जाइमर पेशेंट, शी वाज अ लेडी एंड शी हैड कंप्लीटली लॉस्ट हर मेमोरी, मतलब उनको अपने हस्बैंड का नाम भी बिल्कुल याद नहीं था। तो वंस वाइल डूइंग अ सेशन, बाय चांस मैंने कोई गाना गाया उनके सामने, तो ऐसा पता चला कि दैट सॉन्ग वाज प्लेड ऑन देयर वेडिंग डे। तो वो सुनते सुनते अचानक से उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम बोल दिया, एंड शी वाज सो, द हस्बैंड वाज रियली इलेटेड, ही वाज सो हैप्पी इन टीयर्स। मतलब ऐसी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। ऐसी एक और लेडी थी, वो बिल्कुल सब कुछ भूल गई थी, तो एक बार मैं उनको ए मेरे वतन के लोगों सुना रही थी 15 अगस्त पे, तो सारी उनकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मेमोरीज जो भी थी, क्या हुआ कैसे हुआ, सब वो बताने लग गई, एंड काफी अच्छे मूड में आ गई, एंड काफी उनकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी। मतलब वो गाते गा भी लेते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जब मैं गाना गाती हूँ, पुराने गाने उनके टाइम के, उनके बचपन के, उनके टीनेज एडल्टहुड के, दे सिंग अलोंग विद मी। वैसे उनसे एक शब्द नहीं बोला जाता, ना याद आता है, बट गानों की मेमोरी कभी नहीं जाती। जो म्यूजिकल मेमोरी है वो एल्जाइमर्स के लास्ट स्टेज तक इंटैक्ट रहती है। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट ऐसा होता है। सो वी कैन यूज इट इन एल्जाइमर्स। फिर इसके अलावा रिहैबिलिटेशन में बहुत इफेक्टिव है म्यूजिक थेरेपी, जैसे कि अगर स्ट्रोक, पोस्ट स्ट्रोक, टू इम्प्रूव द मोटर स्किल्स एंड द स्पीच स्किल्स, म्यूजिक थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। फिर पेन को रिलीव करने में, ताकि हम जो फ्रीक्वेंसी है पेन किलर्स की वो कम करने में भी म्यूजिक थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। सब्सटेंस एडिक्शन इज वन आल्सो एन आइडियल थिंग, जिसमें कि टू गेट रिड ऑफ द सब्सटेंस, जो वो ड्रग्स है या अल्कोहल है, उससे हटने में भी म्यूजिक थेरेपी को हम यूज करते हैं। फिर पैलिएटिव केयर है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं, टर्मिनल स्टेज पे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन, विद म्यूजिक थेरेपी वी कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गिव देम सम कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट एटलीस्ट, नो। सो हमने ये भी देखा है कि जैसे कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट को, एक रिसर्च में पाया गया कि जब म्यूजिक थेरेपी के बाद हमने ब्रेन स्कैन किया उसका, तो उसमें देखा गया कि जो मोटिवेशन और इमोशनल एरियाज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एक तरह से मोटिवेट हो जाता है ट्रीटमेंट को लेने के लिए, और वो रिस्पॉन्ड भी बेटर करने लग जाता है उसी ट्रीटमेंट को। इसके अलावा बिहेवियरल इश्यूज है बच्चों में, एडीएचडी है, इन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मुझे याद आ रहा है, ऑटिज्म हैज एक्सेलेंट रिजल्ट्स। रादर वी हैव एन ऑटिस्टिक गर्ल कॉल्ड बेंजी, उसने भी शायद ज्वाइन किया है आज। शी वाज सेइंग शी इज अराउंड अ 26-27 year old girl, young girl, and she cannot communicate properly but sings beautifully. मैंने उसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी गाया है, एंड इतना सुंदर वो गाती है। एंड शी हैड लर्न क्लासिकल म्यूजिक इन हर चाइल्डहुड, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं। उसको बहुत ही एवरीथिंग शी हैज पिक्ड अप, उसकी इतनी कैसेट्स, इतनी सीरीज रिलीज हो चुकी हैं, इतने उसको अवार्ड्स मिले हैं, 3 नेशनल अवार्ड्स, उसके अलावा आई डोंट नो व्हाट नॉट, लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड से भी उसको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। तो at this note, I would also like you all to join me in giving her an applause for Benzi. Cheers to Benzi. कभी हम उसके साथ भी सेशन करेंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगी उससे। हाँ हाँ, श्योर, विल बी ग्लैड। रादर आपकी बातें सुनकर म्यूजिक थेरेपी की, होम्योपैथी का तो फिर भी हमें थोड़ा आइडिया था, मीठी गोली एंड ऑल, बट आई हैड गूज बम्स जब आप शेयर कर रहे थे कि मेमोरी लोगों की वापस आ रही है, एंड तो somebody could recall her husband's name, और उन्हें किसी को अपने तो मैं बचपन की इसीलिए सारी बात। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू माय डॉक्टर फ्रेंड्स एंड साइकोलॉजिस्ट लाइक यू टू रिकमेंड म्यूजिक थेरेपी टू देयर पेशेंट्स फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं देते रहिए, बट साथ में यू मस्ट यूज म्यूजिक एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इट विल रियली हेल्प योर पेशेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ज्वाइन किया है, सो आई वुड जस्ट लाइक टू एड अ वर्ड लाइक दैट। ठीक है। और रादर आई वुड लाइक ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अगर कोई टीचर्स या स्टूडेंट्स हों तो दे मस्ट सजेस्ट देयर स्कूल्स की कम से कम एग्जाम से पहले तो नहीं, स्टूडेंट्स म्यूजिक और टीचर्स। थेरेपी एग्जाम्स में भी रखी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे म्यूजिक सुनते हैं या सीखते हैं ना बचपन से, तो उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो बहुत बेनिफिट्स हैं, बच्चों को तो जरूर सेशंस कराने चाहिए, और नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाना चाहिए, व्हाट आई वुड से। बहुत फर्क पड़ता है उससे। हाँ, जैसे आपने पेंजी के बारे में शेयर किया कि दो शी कैन नॉट टॉक बट शी कैन सिंग वेरी वेल, यस, तो दैट मीन्स यस। हैज इट्स ओन रोल टू प्ले। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब आपसे बात कर कर। वी आर सो फॉर्चुनेट कि डॉक्टर हैं हमारे पास जो अपनी मीठी आवाज से और अपनी मीठी गोलियों से सबको ट्रीट करती हैं। तो हम लोग एक सेशन डॉक्टर साहब और रखेंगे टू लर्न मोर अबाउट म्यूजिक थेरेपी, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई नो यू एंड दो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे म्यूजिक थेरेपी के बारे में इतना सब कुछ नहीं मालूम था जितना कि आज मुझे आपसे पता चला। बट बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमें भी कराएं म्यूजिक थेरेपी का, कि हाउ इट एलिवेट्स आवर मूड एंड हाउ इट हेल्प्स इन इमोशनली। ओके, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी, जस्ट अ स्मॉल पार्ट। बहुत कुछ है इसमें, बट आई थिंक अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम एक छोटा सा सैम्पल कर सकते हैं। मैं एक गाना गाऊंगी एंड द ऑडियंस कैन सिंग अलोंग, यू कैन सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, tap your feet, or even dance if you want to, or you can create and listen and create an image in your mind। जो भी लिरिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने माइंड में कुछ कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद देर इज एन एक्टिविटी फॉर द ऑडियंस। आई वुड लाइक यू टू कमेंट अबाउट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, हाउ यू फेल्ट आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग। कोई इंसिडेंट आपके माइंड में आ गया हो गाने से रिलेटेड, गाना सुनने के बाद, तो वो भी जरूर बताइए हमें। हम आपके कमेंट्स अभी जरूर वेट कर रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। तो चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई गम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ठीक है, तो लेट्स एंजॉय। चल के तुझे मैं लेके चलूं। एक सेकेंड, ये बंद क्यों हो गया?
एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पड़े। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे। एक ऐसे गगन के तरह। आई होप यू आर क्लैपिंग, डॉक्टर पूजा। जब झुकी पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर। और ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ी देर और गाते रहो गाते रहो, इतने सारे कमेंट्स आए, लवली वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस। और शायद आपके ऑलरेडी जो क्लाइंट्स हैं उनके भी थे, एज यूजुअल वेरी रिलैक्सिंग। इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स आ गई ना डॉक्टर तुली, मुझे लगता है कि जैसे आज वर्ल्ड कप, इंडिया तो जीतने ही वाला है आज का मैच। इतनी पॉजिटिविटी, और जितने भी लोग जहाँ भी हैं, see, continuously we are getting comments, thanks a lot, and even the session was very informative. Beautiful song, lovely voice. वाह अभिरुचि, just टॉप क्लास लिखना चाह रही हूँ, शायद जल्दी जल्दी में फूड लिखा उन्होंने, बट जो भी है बहुत बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक सेशन और करना चाहिए इन नियर फ्यूचर, जिसमें हम म्यूजिक थेरेपी के बारे में और बात करें। बहुत बहुत श्योर श्योर डॉक्टर अच्छा। पूजा, एक पूरा सेशन करेंगे, फुल ऑनलाइन सेशन ऑन म्यूजिक थेरेपी। ठीक है। वेयर वी कैन इवन एक्सप्लेन कि जो लोग अगर सीखना चाहते हैं, हाउ दे कैन लर्न अबाउट इट। बहुत अच्छा था। Somebody has just mentioned God gifted. Shukant sir has mentioned. He's from थैंक Team यू of सो Pure मच। Relaxing थैंक यू Music. सो मच। Very so थैंक यू। actually it was रिलैक्सिंग। और मुझे ना गुड बाय कहने का भी मन नहीं कर रहा है डॉक्टर अभिरुचि, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा कुछ और आपसे सुन ले, बट we'll conclude today's session, and thank you so very much for finding time for us and sharing all the valuable information. Thank you, Thank you and so much, thanks. Dr. Pooja. Thank you for inviting me here, and thanks to all the audience for patiently listening to me. Thank you so much. Thank you. Good Thank night, you. Bye everyone. bye. Good night. Good night. Have a nice day. Nice night.